we have the Reserve Bank has issued has in fact issued two press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision, and your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days, which we have given, is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. So why did the RBI take so long to come up with this decision? Why wasn't it done sooner? The problem. No, there is always a question. If you do, there is always a question that RBI acted prematurely. There could be another view that why did you take so long? We have been, as we have explained, we have naturally a market-based resolution of the problem. A bank-led, investor-led resolution of the problem is always preferable. We have said that in our press statement yesterday also. So naturally you have to give time to the bank, to the management to take whatever steps or whatever efforts they need to take. And the bank did try over the last several months. Yeah. So when we found that it was not working out, so therefore and when we found that it was, we cannot wait and we should not wait any longer, RBI decided to intervene. So therefore, I think the timing is quite appropriate, and I can I can assure you that the RBI will come out with a scheme, as we have said in our press statement, very shortly. I'm in continuous interaction with the RBI. The RBI is fully seized of the matter and has assured that they will give a quick resolution. I want to also assure every depositor that their money shall be safe. Their monies are safe. I want to assure every depositor. I am constantly in touch with Reserve Bank, and the steps that are taken in the interest of the depositors, the bank and the economy. We are fully seized of the developments, so I repeat, the depositors can be assured that their money is safe. Ma'am, various options, what are the options that are on the table so far? You also had a meeting today with the SBI chairman. No, that was on a completely different matter. Ma'am, what are the options? Ma'am, जरूर एक भय का माहौल है. आवश्यकता नहीं है जी. मैं जरूर आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ कि हाँ, डिपॉजिटर के मन में डाउट है कि क्या हो रही है. मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ आपके पैसा सुरक्षित है. डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है. और रिजर्व बैंक ने मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेजोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा. It's most unfortunate. What I feel is Indian economy is going on a free fall. ये फॉल जो है अरेस्ट नहीं हो पा रही. जो इन्होंने एग्जिट किया है पैराशूट से, वो पैराशूट इनका खुल नहीं पा रहा और फ्री फॉल हो रही है. आप देखिए स्टॉक मार्केट्स की, देखिए क्या पोजीशन है. आप निफ्टी की पोजीशन देखिए, शेयर वैल्यूज़ की देखिए, सारा शेयर मार्केट गिर रही है. और ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि जैसे वो पंजाब महाराष्ट्र बैंक का क्राइसिस था, वैसे ये क्राइसिस शुरू हो गया. और एक बैंक नहीं फेल हुआ, पता नहीं कितने बैंक फेल हो चुके हैं. हर कोशिश इन्होंने कर ली है, बैंक्स को इकट्ठा भी किया है. उसके बावजूद भी जितना रिजर्व बैंक के पास रिजर्व से वो 1.5 लाख करोड़ रुपया वो भी बाहर निकाल लिया है. इकॉनमी सुधरने का नाम नहीं ले रही. तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है देश के सामने, और गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू हैव अ वे हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. देखिए, बैंक का जो मामला सामने आया यस बैंक का, इसके पूरे इतिहास को समझना जरूरी होगा. धीरे धीरे करके 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को सरकार ने बांट रखा है. कर्जा पूरा नहीं कर रहे वो लोग, बैंकों में पैसा जमा नहीं हो रहा है. और बैंकों में पैसा जमा किसका था? आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, सरकारी कर्मचारी का, व्यापारी का.
जब नीरव मोदी लेके उसको भाग जाएगा, विजय माल्या उसको लेके भाग जाएगा, ललित मोदी उसको लेके भाग जाएगा, मेहुल चौकसी उसको लेके भाग जाएगा, नितिन संदेशरा उसको लेके भाग जाएगा और सरकार हेल्पलेस होकर खड़ी रहेगी, तो कैसे आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा? 10.5 लाख करोड़ रुपए जिससे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, अस्पताल बनाए जा सकते हैं, स्कूल बनाए जा सकते हैं। अगर 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पूंजीपतियों से वापस ले लिया जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बन सकता है। आज वो पैसा, वो घाटा पूरा करने के लिए आप आरबीआई का रिजर्व पैसा निकाल के वहां जमा करते हैं। कब तक ये बट्टे खाते का खेल चलता रहेगा? और पूरे देश को उलझा रखा है हिंदू मुसलमान में। लड़ते रहो आप, बेरोजगारी पे बात मत करो, किसान पे बात मत करो, अपनी बुनियादी सुविधाओं पे बात मत करो, लड़ते रहो इन्हीं मुद्दों पे। तो ये बैंक का घोटाला और बैंक के बंद होने का सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूंजीपतियों से, जो भाजपा के मित्रों हैं, उनसे जब तक पैसा वापस लेके बैंकों में जमा नहीं किया जाता। पीएमसी बैंक डूबा, आईएलएफएस दीवान वो भी खत्म हो चुके हैं और अब जो है ये यस बैंक आया, शेड्यूल बैंक। तो ये आरबीआई का जो नॉमिनी बैठा है वो क्या कर रहा है, और उसका जो फाउंडर था वो तो मजे ले रहा है, भाग गया है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते अब तक? और कब तक ये सरकार बैंक को डूबने देगी? और आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसको स्पॉन्सर यस बैंक कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको। कितना लंबा लाइन लगा हुआ है ऐसा डिमोनेटाइजेशन में जिस तरीके? हाँ, ये देखिए, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इसी यस बैंक के उस क्या नाम है उनका, गुप्ता है, राणा ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज अ ग्रेट गिफ्ट टू दिस नेशन। अब वो तो अपना गिफ्ट लेकर गायब हो गए, रफू चक्कर हो गए और गरीब परेशान है। तो इस सरकार ने कोई सबक हासिल नहीं किया है। हम समझ रहे थे कि पीएमसी बैंक के बाद अब ये उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। आपको लगता है सरकार में वित्तीय खेल नजर आ रही है? हालात खराब हैं बिल्कुल, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के माहिर हैं।